So these are the five files from which I will be teaching 01 to 05. All this I will be sharing in the free group also and the normal paid group also, right? And this will be uploaded on Drive also. So I will start with transfer pricing first, and then I will also teach the variance topic, right? How to calculate the variance, which is formula based, right? See, this is the file number 04. And here the question is this. What is transfer pricing? Transfer pricing सिंपल वर्ड्स में बोलो कि अगर एक कंपनी में दो तीन डिवीजन है, तो अगर एक डिवीजन कोई प्रोडक्ट बना रहा है और दूसरे डिवीजन को वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो क्या प्राइस पे ट्रांसफर करेगा? दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग. Here this question number 6, company beta operates in different countries and the market price for a particular product varies from $90 in country X to $120 in country Y. अलग अलग कंट्री में अलग अलग है यहाँ पे सेलिंग प्राइस. Determine the market based transfer price for 800 units of this product if it is produced in country X but sold in country Y. अगर X में प्रोड्यूस किया और Y में बेचा तो what will be market based transfer price? How can market based transfer pricing help align the company's internal transactions with the external market conditions? तो यहाँ पे market price in country X that is already given 90, market price in country Y that is also given, and quantity that is to be transferred by producing in X and to Y country that is also given in the question, that is 800, right? So market based transfer pricing calculation, क्योंकि प्रोडक्ट ये X में बनाया गया है और Y में बेचा है ना, तो जो भी एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस होंगे वो तो हमें देखने ही पड़ेंगे. और Y में क्या है? मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस यानी Y का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 120, क्योंकि मार्केट प्राइस इज द ट्रांसफर प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज 120. तो मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग होता है. मार्केट बेस्ड मींस द सेलिंग प्राइस इन द मार्केट. कॉस्ट बेस्ड यानी जो कंट्री में बना रहे हैं उसका कॉस्ट. तो here the market based transfer pricing is 120 per unit because we are selling in Y. Total market based transfer price क्या करेंगे हम? 120 into 800, तो we will get the amount. Tax liability in country B, जो भी taxable income होगा उसमें टैक्स लाइबिलिटी नहीं है. ये कोई दूसरे क्वेश्चन का है, थोड़ा ऊपर नीचे आई गेस कर सकते हैं. PDF फिफ्थ क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन है. दिस इज डिफरेंट. उल्टा सीधा है उसके अंदर थोड़ा some numericals, but that is fine. तो इधर है इसके नेक्स्ट का, देखो आगे है, दिस इज पेज नंबर 13 पे है आगे का सॉल्यूशन. द पीडीएफ इज लिटिल अप एंड डाउन जिसने भी भेजा है. तो ये टोटल मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस क्या होता है हमारा? जितना भी पर यूनिट $120 है और क्वांटिटी 800 है, तो टोटल इट वुड बी $96,000. एंड दे हैव आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन कि एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन के साथ कैसे अलाइन करेंगे. तो मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग हेल्प्स अलाइन इंटरनल ट्रांजैक्शंस विद एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस. ये तो थियोरेटिकल है, ये तुम लोगों को यही लिखना है अगर एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस पे आता है, यानी हम जहां बेच रहे हैं वहां के मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम ट्रांसफर प्राइस यूज कर रहे हैं. तो जो भी हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शंस है वो एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से अलाइन होता है और वहां की मार्केट प्राइस जो भी ओपन मार्केट में है वो हमें मिलती है. इन दिस केस यूजिंग द मार्केट प्राइस इन कंट्री Y as transfer price ensures that the company's internal transactions
reflect the external market conditions in the destination country. Destination country मतलब जहाँ बेच रहे हैं वहाँ का हमें external market conditions reflect करता है. This alignment can help in achieving fairness and better decision making with the company. To answer, the market-based transfer price is 120 per unit, resulting of total 96,000. And this approach helps align the company's internal transactions with the external market conditions. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था. थोड़ा ऊपर नीचे है तो तुम लोग ये पीडीएफ में ध्यान रखो, यानी not question number 1, this was this question number 6, right? This was question number 6 और इसका सॉल्यूशन पेज 1 के बाद आगे का पेज 13 पे था, right? On the page 13 we will try to discuss in क्वेश्चन नंबर वाइज. तो अभी हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट? न्यूमेरिकल फॉर ट्रांसफर प्राइस. सो हियर दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कंपनी सी हैज टू सब्सिडरीज, subsidiary P and subsidiary Q. Subsidiary P manufactures a product that can be sold in the market for $200. दो सब्सिडरी है, एक कंपनी है, उसकी दो सब्सिडरी कंपनी है P और Q. P एक प्रोडक्ट बना के बेचती है मार्केट में $200 में और उसका कॉस्ट $120 पर यूनिट है. Q उस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके $250 में बेचती है. Calculate the transfer price if the company wants to split the profit equally between the two subsidiaries. तो यहाँ पे कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों को इक्वली बांटना चाहती है, तो ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए? तो ये भी बहुत सिंपल है कि देखो P तो 200 में बेच रही है, उसका कॉस्ट 120 है, तो ऑब्वियसली कंपनी सी का कॉस्ट 120 है. अगर P Q को ट्रांसफर करती है तो Q उसको 250 में बेचेगी. अगर Q 250 में बेचेगी तो पूरे कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा? 250 माइनस 120 विच इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि दोनों सब्सिडरी तो कंपनी की है. 130 रुपीज प्रॉफिट होगा पर यूनिट, बिकॉज इफ P ट्रांसफर्स टू Q, P ने बनाया 120 में और उसने मार्केट में नहीं बेच के Q को ट्रांसफर किया और Q ने 250 में बेचा, तो Q एंड P का मिला के प्रॉफिट 130 होगा. दैट इज कंपनी सी का प्रॉफिट 130 होगा. और यहाँ पे लिखा है दोनों को इक्वल प्रॉफिट देना है, तो यहाँ पे दिया होगा डिस्कस है. तो ये तो क्वेश्चन में दे दिया है. सेलिंग प्राइस 200, कॉस्ट पर यूनिट 120. P का प्रॉफिट कितना होगा? 200 माइनस 120, 80. अगर P मार्केट में बेचती है तो P को प्रॉफिट होगा 80. Q को कितना प्रॉफिट होगा? वो 250 में सेल करेगी और वो P का जो कॉस्ट है, P उसको कॉस्ट पे अगर देती है 120 पे, तो Q को प्रॉफिट होगा 130 और P को प्रॉफिट होगा 80, राइट? तो 80 and 130, P will also sell in the market also and Q also will sell in the market. दोनों मार्केट में बेचेंगे, राइट? तो दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना होने वाला है? 80 and 130, that is 210 will be the total profit. अब इसका सॉल्यूशन भी आगे होगा. सब ऊपर नीचे भेजा है जिसने भी पीडीएफ भेजा है. दिस आर नॉट अलाइन प्रॉपर्ली. ऊपर है इसका सॉल्यूशन. तो सिंपल है कि 210 इज द टोटल प्रॉफिट. तो उसको हम दोनों सब्सिडरी में डिवाइड करेंगे इक्वली. तो 210 डिवाइड बाय 2, that will give you 60, 105. 210 divided by 2 will give you 105. So transfer price will be बहुत ऊपर नीचे है. ये रहेगा. See, since the company wants to split, अभी ये पेज नंबर 3 पे है वो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन. I don't know from which division it is. बाद में कोई अच्छा पीडीएफ बना के भेज देना, इसमें सब ऊपर नीचे है.
Since the company wants to split the profit equally, so total 80 plus 130, total profit of both the subsidiary will be 210. तो सब्सिडरी P को हाफ प्रॉफिट मिलेगा, तो 210 का हाफ कितना होता है 105, और उसका कॉस्ट कितना है 120, तो 120 प्लस 105 दैट इज 210 डिवाइड बाय 2, तो $225 पे सब्सिडरी P ट्रांसफर करेगी सब्सिडरी Q को, ताकि दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिले. तो subsidiary P will be transferring to subsidiary Q at 225 per unit. Clear है ये भी? Any doubt in these two questions? सर वो एक बार फिर से बताइए ना, सब्सिडरी वाला. देखो क्वेश्चन बहुत ऊपर नीचे है यहाँ पे, तो अलाइन में नहीं है, प्रॉब्लम वो है. तुम लोगों को कुछ है नहीं क्या पीडीएफ तुम लोग ने नहीं बनाया किसी ने अच्छा कुछ भी? ये सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हो क्या तुम लोग? कॉमन सब्जेक्ट है ये, तो कहीं पे भी फाइल किसने अच्छा नहीं भेजा है, सब ऊपर नीचे भेजा है थोड़ा. क्या डाउट है पूछो. ये क्वेश्चन था. हाँ सर, ये क्वेश्चन समझा नहीं. क्या क्वेश्चन नहीं सर समझा? सब्सिडरी पार्ट से नहीं समझा सर. क्या सब्सिडरी पार्ट से नहीं समझा. सब्सिडरी पार्ट से मतलब दोनों सब्सिडरी ही है. ओके, दो ये सब्सिडरी पी और क्यू. पी 120 में बना रही है और 200 में बेच रही है, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा पी को? पी 120 में बना के 200 में बेच रही है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 80 सर, 80. तो यहाँ पे वही लिखा है ना. और अगर पी क्यू को दे देगी, क्योंकि दोनों सेम ही कंपनी की सब्सिडरी है ना. हाँ. अगर पी ने क्यू को बना के दिया और पी 250 में बेचेगी, तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा? 130. 130. तो दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना होगा? 210. 210. और यहाँ क्या लिखा है, कंपनी को क्या करना है, दोनों इक्वल स्प्लिट द प्रॉफिट इक्वली. तो 210 का आधा कितना होता है? 105. 105. तो पी का कॉस्ट है 120 और उसका प्रॉफिट 105, तो वो ट्रांसफर कितने में करेगी? 120 प्लस 105, 225 में ट्रांसफर. क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन था. ये पहले फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं. चलो जो आता है लाइन से वही देख लेते हैं. अब यहाँ पे कंपनी ए एज अ मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है ना, सेल्स डिवीजन, दो डिवीजन है. मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ $50 per unit. The sales division sells the product at a market price of 80. मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन 50 में बनाता है, सेल्स डिवीजन उसको 80 में बेचता है. कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन इन द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. राइट. 1000 यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड. तो देखो ओवरऑल प्रॉफिट तो सिंपल है कि 80 में बेच रहे हैं और 50 कॉस्ट है, तो 30 रुपया पर यूनिट और 1000 इंटू 30. मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का कॉस्ट है 50,000, राइट. और अब इसमें भी ऊपर नीचे है, इसमें शायद सम्स होगा. तो देखो इसके अंदर हैंड रिटन में भी है, यही सब है. ये $50 कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का, सेलिंग का 80 में बेच रहे हैं, यूनिट्स 1000 है. तो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का कॉस्ट $50 इंटू 1000, राइट, दैट इज 50,000, राइट. 50,000 है. और सेल्स डिवीजन बेचेगा कितने में? 80 में, तो दैट इज 80,000. तो प्रॉफिट कितना होगा? 80,000 माइनस 50,000, दैट इज 30,000 विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट. तो यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या पूछा था? ये कौन सा फाइल था? दिस फाइल एमडीएस. तो क्वेश्चन में वही पूछा था, राइट. तो सेल्स डिवीजन 80,000 में बेचेगा, तो कंपनी का प्रॉफिट तो आ गया, दैट इज 30,000. एंड यहाँ पे बोला प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन.
अब ईच डिवीजन है तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इक्वली डिवाइड करना है कि कैसे, तो हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो ईच डिवीजन का प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 एंड 15,000. 1,000 यूनिट्स इंटू कॉस्ट प्राइस इज 50, सेलिंग प्राइस इज 80, 30 रुपीज प्रॉफिट है. क्लियर है ना? ये 30,000 प्रॉफिट है पूरे कंपनी का, और दोनों डिवीजन को आधा आधा 15,000 15,000 रहेगा. क्लियर है ये भी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. कंपनी डी ऑपरेट्स इन 2 कंट्रीज. एक कंपनी है, 2 कंट्री में ऑपरेट कर रही है, ए और बी. टैक्स रेट टू कंट्री ए इज 30%. कंट्री ए में टैक्स रेट 30% है, राइट, और कंट्री बी में 20% है. Company has the option to set its transfer price for a component at 100 or 150. कंपनी या तो $100 में ट्रांसफर कर सकती है या 150 में ट्रांसफर कर सकती है. Calculate the overall tax liability in each country under both transfer price scenario and determine which is more tax efficient. दोनों कंट्री में से कौन से इसमें 100 में ट्रांसफर करने में टैक्स बचेगा कि 150 में ट्रांसफर करने में टैक्स बचेगा, ये हम लोगों ने पूछा. कंट्री ए में टैक्स रेट ज्यादा है, कंट्री बी में टैक्स रेट कम है, तो हमें कंट्री बी को कम भाव में देना चाहिए, तो हमें टैक्स बचेगा. उसका प्रॉफिट कम शो करना पड़ेगा. इसका जिसका टैक्स कम है उसका प्रॉफिट कम शो करे. तो ट्रांसफर प्राइस ऑप्शन या तो 100 है या 150 है. अब सिनेरियो 1, अगर हम $100 में ट्रांसफर करते हैं तो ए में कितना टैक्स लगेगा? 30%, राइट. तो 100 का 30%, 30 रुपीज ए में लगेगा, राइट. अब टैक्स लाइबिलिटी इन बी, टैक्सेबल इनकम इन कंट्री बी, सेलिंग प्राइस इन कंट्री बी माइनस ट्रांसफर प्राइस. अब बी कितने में बेचेगी? वो तो 100 में ही बेचेगी क्योंकि कुछ दिया नहीं है. सेट इट ट्रांसफर प्राइस, बेचने का प्राइस नहीं दिया, तो हम सोचेंगे कि वो 100 में बेचेगी और 100 में ट्रांसफर किया हमने, तो उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा. तो देयरफॉर टैक्स कंट्री बी में 0 आएगा. मतलब अगर हम 100 में ट्रांसफर करते हैं तो 30 वुड बी दिस. अच्छा, वो 1 इतने में, तो इसमें 30 आएगा और बी में कोई भी टैक्स नहीं आएगा. तो ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? 30 इफ वी ट्रांसफर एट 100 में ट्रांसफर करेंगे. ये तो सिनेरियो 1 हो गया. अब सिनेरियो 2 देखो, ये ओवरऑल प्रॉफिट 30,000, उसका सॉल्यूशन यहाँ था, वो सेल्स डिविजन है. तो ये उधर था, अब इसका ऊपर है, सब ऊपर नीचे है. Scenario 2 is where ये क्या scenario 2 what problem. इसका किसी के पास भी सम्स है नहीं प्रॉपर ऑर्डर में. लोगों को सिखाया होगा ना, ये भी तो कोई डिवीजन का ही होगा, कोई भी नहीं है ये डिवीजन में से. अब ये सिनेरियो 2, ये पेज नंबर 4 पे है. ट्रांसफर प्राइस अगर 150 होता है, राइट, तो ऑब्वियस है कि कंट्री ए में उसको कितना जाएगा टैक्स, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रांसफर प्राइस खाली दिया है, ये नहीं दिया है कि बी में कितने में बेचेंगे और ए में कितने में बेचेंगे, कुछ भी नहीं दिया. तो जो ट्रांसफर प्राइस है वही हम टैक्सेबल इनकम एज्यूम कर रहे हैं. तो अगर 150 में ट्रांसफर कर रहे हैं और 30% है, तो 150 इंटू 30% $45 यहाँ पे जाएगा. और टैक्स लाइबिलिटी इन कंट्री बी 20% है, तो वहां पे तो 0 ही जाएगा, राइट. तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कंट्री ए में $45 होगा. तो ऑब्वियस है कि ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी कम का है. जब हम 100 में ट्रांसफर कर रहे थे तो उसमें $30 ही आ रहा था. तो इसीलिए बिकॉज इन कंट्री ए टैक्स लाइबिलिटी इज मोर, 30% है, और कंट्री बी में 20% है, तो हमें कंट्री ए में कम इनकम बता.
तो कंट्री ए को कंट्री बी को 100 रुपए में ही ट्रांसफर करना चाहिए, तो कंट्री ए का इनकम 100 ही माना जाएगा और उस पर 30% 30 रुपया ही टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। जबकि अगर 150 रुपए में कंट्री ए कंट्री बी को ट्रांसफर करेगी तो कंट्री ए को 150 रुपए पे 30% भरना पड़ेगा, तो देयरफॉर 100 पे हमें ट्रांसफर करना चाहिए, वो ज्यादा मोर टैक्स एफिशिएंट है, हमारा टैक्स $15 बचेगा। ये भी क्लियर है क्या? ये भी क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कंपनी अल्फा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन produces a component at a cost of $75 per unit. The marketing division sells the component at a market price of $120 per unit. ये भी वैसा ही है कि 1500 units are transferred from manufacturing to marketing. Calculate the profit for each division and the overall profit for the company. How does this cost-based transfer pricing impact the performance evaluation of the two divisions? इसमें देखो एक नया पार्ट और है, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन 75 में मैन्युफैक्चर कर रहा है और मार्केटिंग डिवीजन 120 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट फॉर ईच डिवीजन कैसा होगा? मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन 75 1500 क्वांटिटी ट्रांसफर करेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 75 into 1500, दैट इज 1,12,500। मार्केटिंग डिवीजन 120 में बेचेगा, तो उसको जो टोटल मिलेगा दैट इज 120 into 1500। देखो हैंड रिटन ये भी होना चाहिए, वैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, आई विल सेंड दिस हैंड रिटन आल्सो। in which something will be solved, I guess. हाँ ये रहा, तो सी ये तो 1,12,500 एंड सेलिंग प्राइस इज 120 into 1500 which is 1,80,000, तो प्रॉफिट कितना होगा? 67,500, राइट। प्रॉफिट विल बी 67,500, इसमें भी होगा, बस खाली ऊपर नीचे है। क्वेश्चंस ये तो बहुत सिंपल सम सी लग रहे हैं, आई डोंट नो कैसे अलाइन नहीं है। हाँ ये क्वांटिटी ट्रांसफर 1500, तो मार्केटिंग डिवीजन को 1,80,000 मिलेगा, तो प्रॉफिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन क्या होगा? वो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को ही पूरा प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 67,500, राइट। क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, मार्केटिंग ने तो खाली सेल किया, तो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का प्रॉफिट 67,500, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट भी 67,500, राइट। अब अगर कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग होता तो जो इम्पैक्ट क्या होता? अगर कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग होता तो मार्केट प्राइस 120 है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन वुड हैव जनरेटेड अ हायर प्रॉफिट। द यूज ऑफ cost based transfer pricing may not reflect the true economic value. With cost based transfer pricing, the manufacturing division profit is 67,500 and the overall company profit is 67,500. However, this method may not accurately reflect the true economic contribution of each division. क्योंकि देखो पूरा प्रॉफिट हमने क्या मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को ही दे दिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग 120 में बना रहा है और मार्केटिंग में उसको बेचा, तो जो भी डिफरेंस है वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग को दे दिया, बिकॉज दिस इज कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। तो यहाँ पे मार्केटिंग का कंट्रीब्यूशन कितना है वो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो जो प्रॉपर नहीं है कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग में, ऐसा इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। Then in this the question number 1 तो हमने डिस्कस कर लिया, 4 भी हमने डिस्कस कर लिया, 5 भी कर लिया, शायद अभी कौन सा क्वेश्चन बचा ऊपर से ही देखते हैं। 7
ये भी टैक्स लाइबिलिटी वाले है। वैसे ही कंपनी डेल्टा हैज द ऑप्शन टू सेट द ट्रांसफर प्राइस फॉर अ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट 200 या 250 में। ए में 25% है, बी में 15% है। बोथ ट्रांसफर प्राइस, व्हाट फैक्टर शुड द कंपनी कंसिडर in making transfer pricing decisions to optimize tax position while complying with regulations, right? तो ट्रांसफर प्राइस 200 और 250 है। तो अगर हम 200 में ट्रांसफर करेंगे, राइट, तो टैक्सेबल इनकम इन कंट्री ए हो जाएगा 200, राइट। अब 200 का 25%, 50 टैक्स आएगा। ये किधर है 200 का 25%? प्रॉब्लम। ये रहा, यहाँ पे है। तो 200 का 25%, कंट्री ए में 50 रुपया आएगा, कंट्री बी में तो 0 आएगा, राइट, क्योंकि वो पूरा 200 में खरीद रहा है और 200 में बेच रहा है, तो उसका इनकम 0 हो जाएगा, तो उसका कोई टैक्सेबल नहीं आएगा। तो टोटल टैक्सेबल 50 आएगा अगर 200 में ट्रांसफर करते हैं तो। अब अगर हम 250 में ट्रांसफर करेंगे तो 250 का 25%, 62.5 विल बी द टैक्सेबल टैक्स इन कंट्री ए, और कंट्री बी में तो 0 ही आएगा, जैसे हमने एक्स वाई वाला भी एक सम किया था, राइट। तो कंट्री बी में तो 0 ही रहने वाला है, क्योंकि वो 250 में खरीदेगा और 250 में ही बेचेगा, तो कंट्री बी में इट वुड बी 0। तो ओवरऑल टैक्स 62.5 होगा अगर हम 250 में ट्रांसफर करते हैं तो, और अगर हम 200 में करते हैं तो हमारा टैक्स कम होगा, राइट, दैट इज लेस। तो इसीलिए 62.5 होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, 200 में ट्रांसफर करना चाहिए, वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होगा, राइट। तो इसमें तो सब देखो सिंपल सिंपल ही क्वेश्चंस है। ये तुम लोग एक बार रीअरेंज कर लेना, आई डोंट नो ये जो भी डिवीजन के है, या तो सर ने पीडीएफ दिया है या तुम लोगों को इमेजेस दिया है, आई डोंट नो। तो ये देख लेना एक बार। और क्या था, ये भी हमने, वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। इसमें भी है कुछ क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग के, ये वाले फाइल में भी हम देख लेते हैं, ये कोई दूसरे डिवीजन का है। MS Company Limited is a leading manufacturer of a certain consumer durable product. The company has two divisions, engineering and assembly, right? The output of the engineering division is transferred to the assembly division for the further processing and assembling before being sold to the customer as complete product. The verification of the company records reveals that the variable cost per unit of the product for engineering and assembling are 250 and 300। यहाँ पे दो डिवीजन है और दोनों का वेरिएबल कॉस्ट है। पहले इंजीनियरिंग डिवीजन में बनेगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट असेंबली डिवीजन में जाता है, फिर वो उसको और प्रोसेस करके फिर वो कस्टमर को बेचा जाता है। इंजीनियरिंग डिवीजन में जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, वो 250 रुपया पर यूनिट है, और असेंबलिंग डिवीजन में 300 रुपया पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट इंजीनियरिंग डिवीजन का 15,000 है और असेंबली डिवीजन का 10,000 है। द प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इंजीनियरिंग डिवीजन इज 400। प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट 400 और आउटपुट 100 यूनिट्स है, which are sold to customer on completion at rupees 2,000 per unit. If the engineering division decides to charge its transfer to assembly division at cost plus 150%, अगर इंजीनियरिंग डिवीजन कॉस्ट प्लस 150% पे असेंबली डिवीजन को ट्रांसफर करेगा, तो दोनों डिवीजन का प्रॉफिट क्या होगा और पूरी कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, वो भी पूछा है। तो देखो ये यहाँ पे सॉल्व रही। तो इसमें पहले खाली फिगर्स याद रखना है कि क्या क्या कॉस्ट है हमारे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले बेचने से कितना पैसा आएगा इंजीनियरिंग को,
और असेंबली को, राइट। तो यहाँ पे सिंपल है कि इंजीनियरिंग को कितना आएगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि उसका कॉस्ट कितना है। कॉस्ट उसका पहले तो देखो, एक कॉस्ट दिया है कि 400 प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट है और 100 यूनिट्स है। तो 400 इंटू 100 एक तो ये हो जाएगा, प्लस 250 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 250 इंटू 100 ये भी उसका इंजीनियरिंग डिवीजन का कॉस्ट है, प्लस 15,000 फिक्स कॉस्ट है। तो यहाँ पे वही एक्सपेंस में वही लिखा है इन लोगों ने कि पहले 400 इंटू 100 जो हमारा हो जाता है 40,000, राइट। फिर 250 इंटू 100 जो डिवीजन का वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज 25,000, प्लस फिक्स कॉस्ट 15,000। तो इंजीनियरिंग का टोटल कॉस्ट 80,000 है। इंजीनियरिंग का टोटल कॉस्ट 80,000 है। और दिया क्या है, इंजीनियरिंग कितने परसेंटेज पे ट्रांसफर करेगी, 150% ऑफ कॉस्ट। तो 80,000 का 150%, दैट इज 1,20,000 में इंजीनियरिंग डिवीजन असेंबली डिवीजन को बेचेगी, राइट। तो 1,20,000 में बेचेगी और 80,000 कॉस्ट है, तो इंजीनियरिंग का प्रॉफिट हो जाएगा 40,000। ये तो हो गया इंजीनियरिंग। अब असेंबली का कॉस्ट क्या है। असेंबली का प्रोडक्ट कॉस्ट तो नहीं है, बट वो इंजीनियरिंग से खरीदेगी 1,20,000 में। तो इंजीनियरिंग से 1,20,000 में खरीदा, अब उसका वेरिएबल कॉस्ट है 300 पर यूनिट। तो 300 इंटू 100 दैट इज 30,000 और उसका फिक्स कॉस्ट है 10,000। तो यहाँ पे 1,20,000 में खरीदा, 300 इंटू 100 30,000 और फिक्स कॉस्ट 10,000। तो इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 120 प्लस 30 प्लस 10, 1,60,000 ऑफ योर असेंबली डिविजन, राइट। अब वो बेचेगी कितने में, वो यहाँ पे दिया है 2,000 पर यूनिट में बेचने वाले हैं और 100 यूनिट बेचने वाले हैं। तो 2,000 इंटू 100 दैट इज 2 लाख में टोटल इट वुड बी द सेल्स और रेवेन्यू। तो 2 लाख में 1,60,000 गया, तो दैट इज योर ऑपरेटिंग इनकम 80,000। अब ये पूरे कंपनी का कैसे आया, क्योंकि ये तो एक दूसरे को ही दे रहे हैं ना। तो इसलिए खाली जो बाहर से पैसा आएगा वो खाली हम कंपनी में पकड़ेंगे, इन दोनों को ऐड करके नहीं लेंगे। तो दिस 2 लाख, अब ये जो 40,000 है ये तो कॉस्ट है। ये 1,20,000 कॉस्ट में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये तो यहाँ पे हमने लिखा है रिवेन्यू में और यहाँ पे लिखा है कॉस्ट में। तो हमने रिवेन्यू में भी नहीं लिया था क्योंकि वो एक दूसरे का ही है। तो ये दोनों 25 हो जाएगा, तो हमें नहीं लेना है। तो ये 40 प्लस ये तो दोनों का होगा, इसका 25 इसका 30, इसका टोटल लेंगे। ये भी दोनों का कॉस्ट होगा 25, राइट। तो ये सबका टोटल हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 टोटल कॉस्ट है, 2 लाख में टोटल बेचेंगे। कंपनी का प्रॉफिट 80,000 जो इसके टोटल से मैच भी होगा। खाली हमें लेना क्या नहीं है, जो इंजीनियरिंग ने असेंबली को ट्रांसफर किया, ना तो इंजीनियरिंग के सेल्स में वो लेना है और ना असेंबली के कॉस्ट में वो लेना है। बाकी हमें टोटल ही लेना है। तो ओवरऑल कंपनी का भी प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट है किसी को? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? यहाँ पे all other things given in the numerical 1 remain unchanged if the engineering division decides to price it transfer to assembly division at 1,000 per unit for similar products. What is company's overall profit and also the profit of the two division? ये सब कुछ सेम रहेगा, खाली ये जो हमने लिया था ये 1 लाख लेंगे जो 1,20,000 लिया था, राइट। तो बाकी सब सेम ही रहने वाले हैं। ये 1 लाख लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये 1 लाख अगर हम लेते हैं ना, देखो कौन सा 1 लाख लेंगे, बिकॉज वो 1,000 में ट्रांसफर, तो ये 1 लाख लेंगे। कॉस्ट सब सेम ही रहेगा, तो ये जो आएगा ये 20,000 है और ये भी 1 लाख हो जाएगा। तो ये कॉस्ट जो है वो 1,40,000 होगा, तो ये 60,000 आएगा।
ओवरऑल 2 लाख की कंपनी का प्रॉफिट, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट 80,000 ही रहेगा, क्योंकि कंपनी खाली 2,000 में बेच रही है। खाली डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग असेंबली को 20 रुपया कम में, 200 रुपया कम में दे रही है, 1200 की जगह 1000 में, तो देयरफॉर 20,000 इंजीनियरिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा और इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर है क्या? एनी डाउट इन दिस? ये 2 फाइल तो हो गया है। अब हमारा यहाँ पे वेरिएंस वाला है और ये ट्रांसफर प्राइस वाला और है, फिर एक वेरिएंस वाला भी एक फाइल है जो फॉर्मूला बेस्ड है। पहले हम ट्रांसफर प्राइस का देख लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल 1 है एक और, यहाँ पे दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू डिविजन एक्स एंड वाई, द आउटपुट ऑफ एक्स व्हिच मे बी सोल्ड इन द मार्केट एट 300 पर यूनिट is also used as a component by Y for manufacturing a product. एक कंपनी के दो डिवीजन है, एक्स और वाई, राइट। एक्स जो प्रोडक्ट बनाती है वो मार्केट में 300 रुपए में बेचती है, और कंपनी वाई वही जो कंपोनेंट है जो एक्स 300 में बेच रही है, कंपनी जो दूसरा डिवीजन है वाई, वो उस कंपोनेंट को खरीदता है और उससे एक प्रोडक्ट डिवीजन वाई बनाता है। Y require 1 unit of the component from X for producing every 1 unit of the final product, और वो ये जो X का कंपोनेंट है ये खरीद के उससे प्रोडक्ट बना के वो प्रोडक्ट 500 में बेचता है। Y बजटेड प्रोडक्शन X और Y का 3000, X 3000 बना रहे, Y 1000 बना रहा है यूनिट्स। तो यानी X जो 3000 बनाएगा उसमें से 1000 वो Y को देगा और 2000 वो मार्केट में बेचेगा। उन लोगों का कॉस्ट दिया है कि एक्स को कितना होता है कॉस्ट, 100, 60, 40 और 50। वाई का मटेरियल का कॉस्ट क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वो तो एक्स जो भाव में वाई को बेचेगी वही उसका मटेरियल का कॉस्ट होगा। वेजेस, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड सब दे दिया। शो द डिविजनल प्रॉफिट, दोनों डिवीजन का प्रॉफिट निकालने, एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये अलग 3 सिनेरियो में। पहले है मार्केट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड यानी 300 में ही एक्स वाई को बेचेगा। दूसरा है 110% ऑफ फुल कॉस्ट मेथड, तो एक्स का टोटल कॉस्ट निकालेंगे जो भी है 100, 60, 40, 50 दिया है, और उसका 110% एक्स वाई को देगा। और नेगोशिएटेड प्राइस ऑफ 290 एक्स वाई को 290 में देगा। तो ये बहुत सिंपल है ये तो स्टेटमेंट शोइंग डिविजनल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो देखो डिवीजन एक्स का सेल्स क्या होगा पहले तो, क्योंकि वो मार्केट प्राइस मेथड है, तो मार्केट प्राइस मेथड है तो ये 3000 यूनिट में से 2000 वो 300 में बेचेगा मार्केट में, और वाई को भी 300 में ही देगा। तो पूरा कि ये जो 300 रुपए में ही बेचने वाला है पूरा 3000 यूनिट, तो देयरफॉर उसका सेल्स हो जाएगा 3000 इंटू 300, दैट इज 9 लाख। अब इसका कॉस्ट क्या है, ये 100 प्लस 60 प्लस 20, ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट है। मटेरियल वेरिएबल होता है, वेजेस भी वेरिएबल होता है। इन लोग ने पूरा 200 एक साथ ले लिया। तुम लोग अलग अलग भी ले सकते हो, मटेरियल वेजेस वेरिएबल, मटेरियल एंड वेजेस इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। तो 100, 60, 40, 200 इज द कॉस्ट, तो 3000 इंटू 200, 6 लाख वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिक्स कॉस्ट 50 पर यूनिट है, तो 3000 इंटू 50, दैट इज 1,50,000। तो टोटल कॉस्ट हो गया 7,50,000, 6 लाख प्लस 1,50,000। तो डिवीजन एक्स का प्रॉफिट 1,50,000 होगा अगर वो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करता है वाई को। और वो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो 100 प्लस 60 160 प्लस 40 200 प्लस 50 250, 250 इसका कॉस्ट है, 300 में बेच रहा है, तो 300 माइनस 250 जो कितना होता है 50 रुपया पर यूनिट, और वो बेच रहा है 3000 यूनिट, तो 3000 इंटू 50 करोगे तो भी 1.5 लाख आ जाएगा। प्रेजेंटेशन अलग अलग वे में कर सकते। अब वाई का प्रॉफिट कितना होगा, वाई 500 में बेचेगा, वाई कितना बेचेगा 1000 यूनिट, तो 1000 इंटू 500 वाई को सेल से मिलेगा 5 लाख रुपीस।
अब खरीदेगा कितने में, वो x से 300 में खरीदेगा, तो उसका मटेरियल कॉस्ट 300 प्लस ये 50 प्लस 30, तो पहले तो ट्रांसफर कॉस्ट 1000 इंटू 300, तो 3 लाख में वो खरीदेगा, प्लस ये वेरिएबल कॉस्ट जो है 50 और 30 80, तो 1000 इंटू 80, तो 80,000 हो गया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसका हो गया 3,80,000। फिक्स कॉस्ट है 40 रुपया पर यूनिट, तो 1000 इंटू 40 दैट इज 40,000। तो इसका 3,80,000 प्लस 40, टोटल कॉस्ट ऑफ वाई विल बी 4,20,000। और हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये 300 में खरीदेगा, 300 प्लस 50 350 प्लस 30 380 प्लस 40 420, 420 into 1000, 4,20,000 is the total cost and he will sell at 5 lakh, तो इसका प्रॉफिट होगा 80,000, राइट। कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा 2,30,000। ये दोनों को ऐड करके 14 लाख सेल्स, और इसका कॉस्ट ये वाला नहीं लेना है क्योंकि ये तो ट्रांसफर इन कॉस्ट है, 6 लाख प्लस 3,80,000 9,80,000, ये 1,50,000 प्लस 40 1,90,000, तो टोटल कॉस्ट 11,70,000। 14 में से 1170 गया, तो 230 इज योर टोटल बस। तो देयरफॉर इतना इतना प्रॉफिट होगा अगर मार्केट प्राइस है। सेम स्टेटमेंट अब हमें क्या बनाना है, 110% पे खाली ये निकालना है। इसका टोटल है 250 है, 250 का 110% कितना होता है 275, तो वो नीचे कहीं किया है क्या, ये पेज उल्टा सीधा है इसमें भी। हाँ ये फुल कॉस्ट प्राइसिंग देखो 250 कॉस्ट है, तो 250 का 110% 275, तो वो 275 में बेचेगा। अब टोटल 3000 यूनिट्स था, तो उसमें से 2000 तो मार्केट में वो 300 में बेचेगा, 1000 यूनिट जो वाई को देगा वो 275 में देगा, तो इसका टोटल सेल्स 8,75,000 होगा। वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा 6 लाख, फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगा, खाली जो 1000 यूनिट वाई को ट्रांसफर करेगा उसका चेंज होगा। 2000 यूनिट तो मार्केट में ही वो 300 में ही बेचेगा एक्स, तो therefore the sales will be 8,75,000, profit will be 1,25,000। कंपनी का प्रॉफिट तो 2,30,000 ही आएगा, राइट। ओवरऑल प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, खाली क्योंकि एक्स 300 की जगह 275 में दे रहा है वाई को, तो एक्स का प्रॉफिट कम हो गया और वाई का प्रॉफिट उतना बढ़ जाएगा। तो सेल्स तो सेम रहेगा वाई का, सिर्फ ये ट्रांसफर इन कॉस्ट चेंज होगा, 1000 इंटू 300 था या 1000 इंटू 275, तो therefore it would be 275 प्लस 80, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, इसका टोटल कॉस्ट 395, इट इज सेलिंग एट 5 लाख, तो प्रॉफिट विल बी 1,05,000, टोटल प्रॉफिट विल बी 230। और सेम अगर ये 290 में देगा तो 275 की जगह 290 लेना है, बाकी सब सेम रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे, बस उसकी वजह से प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, बट कंपनी का प्रॉफिट तो सेम ही रहने वाला है। डिविजन का प्रॉफिट चेंज होगा बिकॉज एक्स जो वाई को ट्रांसफर कर रही है अलग अलग डिविजन में अलग अलग प्राइस पे, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, एनी डाउट इन दिस? नयोमी, विनीत, तनिष, कर्षिता, दिव्या, अभिषेक, कोई डाउट है इसमें, समझा कि क्लियर है सर। ये एग्जांपल 2 है, the optimum from the following data find out the optimal output level, transfer price, company's profit, profit of the supplying division, profit of the buying receiving division also। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का टोटल कॉस्ट दिया है कि अगर सप्लाई डिवीजन 1000 यूनिट बनाएगा तो टोटल कॉस्ट कितना है, और 2000 बनाएगा तो टोटल कॉस्ट कितना है, ये सब दे दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा, ये
इसका तो 1000 यूनिट का 8000 है, तो ये तो 8000 ही आया, 1000 यूनिट का। अब ये कैसे आएगा, 14 माइनस 8, तो नेक्स्ट 1000 यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ 6000 है। फिर 20 माइनस 14, वो भी 6000, यानी 2000 से 3000 का जो 1000 यूनिट है वो भी 6000 में बन जाएगा। फिर 4000 माइनस 3, ये जो ये दोनों का डिफरेंस है, तो 22 माइनस 20 2000, 26 माइनस 22 4000। तो मार्जिनल कॉस्ट निकाला, डिफरेंस ऑफ द टोटल कॉस्ट, राइट। अब इसका यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और नेट रेवेन्यू दिया, तो यहाँ पे रेवेन्यू का भी वैसे ही, इसका 20,000 है, फिर 38 माइनस 20 इसका रेवेन्यू आ जाएगा, 54 माइनस 38 16 रेवेन्यू आ जाएगा, 68 माइनस 54 इसका रेवेन्यू आ जाएगा, राइट। तो ये तो नेट रेवेन्यू आ गया। अब कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ये 20 माइनस 8 टोटल नेट रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ सप्लाई डिवीजन, 38 माइनस 14 तो 24, 54 माइनस 20 34, 68 माइनस 22 46। ऐसे हमारा लास्ट में 1,08,000 माइनस 62, तो 46,000 इज द कंपनीज प्रॉफिट। तो ये तो हमने बना लिया। ऑप्टिमम आउटपुट लेवल, जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ना, वही ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। सॉल्यूशन नीचे, it will be observed from the above that 7,000 units, तो 7,000 units करना चाहिए। The marginal cost of the supplying division and the marginal net revenue of the receiving division is equal, and the total profit of the company as a whole is the maximum, right? तो जो भी हमारा यहाँ पे था, इसका मतलब देखो ये है, और इसका आगे का पार्ट किधर है, देखो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग है। ऑप्टिमम लेवल इज 7,000, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। 6,000 यूनिट्स पे भी 60,000 है, बट जितना ज्यादा बेचेंगे तो अच्छा है, राइट। जितना ज्यादा बेचेंगे तो अच्छा है, राइट। अब सिंपल है कि ये तो नेट रेवेन्यू हो गया, बट डिवीजन का भी बोला था, तो ऊपर वाले में हमने डिवीजन का नहीं निकाला है। इन द अबाउ वी हैव नॉट कैलकुलेटेड ऑफ द डिवीजन, हमने यहाँ पे टोटल कंपनी का निकाला था, राइट। अब डिवीजन का हम कैसे निकालेंगे, कि सिंपल है कि इसका जो कॉस्ट है, अगर 1,000 यूनिट बना रहे हैं तो 8,000 डिवाइड बाई 1,000, द कॉस्ट इज 8 पर यूनिट मिनिमम। Marginal cost of the optimum level, that is 8,000 for 1,000 units। या यहाँ पे देखो तो ऑप्टिमल लेवल कितना है, ये वाला देखना है, सॉरी 8,000। जो भी मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट इज हाउ मच, 8,000 is the marginal cost at optimum level, 7,000 is the optimum level, cost is 8,000, so 8,000 divided by the difference, that is 7,000 minus 6,000, 1,000 units। तो 8 रुपया मार्जिनल कॉस्ट है सप्लाई डिवीजन का, तो ट्रांसफर प्राइस 8 रुपया रहने वाला है। ट्रांसफर प्राइस 8 रुपया रहेगा, तो ये 8 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करके सप्लाई का रिवेन्यू आएगा। ये जो भी यूनिट्स है 1 से लेके 9 तक, मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये रिवेन्यू आ गया। ये कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया था, तो सप्लाई डिवीजन का प्रॉफिट आ जाएगा। रिसीविंग डिवीजन का रिवेन्यू क्वेश्चन में दिया था, कॉस्ट कहाँ से आएगा, जो भी सप्लाई का रिवेन्यू है वो रिसीविंग डिवीजन का कॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज सप्लाई इतने में रिसीविंग को बेच रहे हैं, रिसीविंग डिवीजन को। और रिसीविंग का प्रॉफिट कैसे आएगा, जो रिसीविंग का नेट रेवेन्यू माइनस रिसीविंग का कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाएगा। और दोनों का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा, जो ऊपर से मैच करेगा। तो ऑप्टिमम लेवल इज दिस, एंड
ट्रांसफर प्राइस इज 8 रुपीज पर यूनिट, जो उन लोगों ने पूछा था। और क्या पूछा था? कंपनीज प्रॉफिट ओवरऑल, वही जो टोटल आया, प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन वो भी आ गया 18 एंड 42,000, एंड कंपनी का प्रॉफिट 60,000। तो ये भी सबका आंसर हो जाता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन कहाँ है, ये वाला इंटरनेशनल क्वेश्चन 3। ये एक और देख लेते हैं, फिर हम वेरिएंस का भी डिस्कस कर लेंगे। Two division of a company P and Q are located in 2 different countries having different income tax rate, 30% in P and 20% in Q. Operating income of the division under different transfer price methods are given as follows. अगर मार्केट प्राइस पे करेंगे तो ऑपरेटिंग इनकम P का 40,000, Q का 20,000 होगा। अगर 110% ऑफ फुल कॉस्ट पे करते हैं तो P का 25 और Q का 35 होगा, और नेगोशिएटेड प्राइस पे करते हैं तो 32 और 28 होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे खाली क्या दिया है कि इनकम टैक्स रेट P में ज्यादा है, 30% है, तो P का इनकम जहाँ सबसे कम होगा वो वाला मेथड बेस्ट है। तो P का इनकम सबसे कम कहाँ, यहाँ पे है 110%, तो ये ऑप्टिमम है। तो टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 25,000 इंटू 30% प्लस 35,000 इंटू 20%। इसका ही सॉल्यूशन दिया होगा यहाँ पे। सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस that will maximize the operating income of the company as a whole। तो ये दे दिया ऑपरेटिंग इनकम। अब हमें करना क्या है, पी का जो भी ऑपरेटिंग इनकम है उस पे टैक्स लगेगा 30%, तो 40,000 का 30% 12,000, डिवीजन क्यू का है 20,000, तो 20,000 का 20% 4,000, तो कंपनी का टोटल टैक्स जाएगा 16,000। 110% ऑफ फुल कॉस्ट पे भी वैसे ही 25,000 का 30% 7,500, 35,000 का 20% 7,000, तो कंपनी का टोटल टैक्स 14,500 जाएगा। और इसमें 32 का 30% 9,600, 28,000 का 20% विच इज 5,600। तो फ्रॉम द एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट है कि 110% ऑफ फुल कॉस्ट इज द लोएस्ट टैक्स है, so the post tax income of the company will be maximum if a transfer price based on 110% of full cost method is followed. MNCs can manipulate their income by use of transfer pricing in the following ways. MNCs set high transfer price for subsidiary in countries with a relatively high rate taxation, right? जहाँ पे ज्यादा है टैक्सेशन वहां पे ट्रांसफर प्राइस उनको ज्यादा में बेचेंगे, और MNC सेट लो ट्रांसफर प्राइस सब्जेक्ट टू हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो ये तो थियरी लिखा है कि कहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी 110% ऑफ फुल कॉस्ट में टैक्स बचेगा, कंपनी वो प्राइस पे ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफर प्राइसिंग के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो डिस्कस कर लिए। अब ये वेरिएंस के है। वेरिएंस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, वेरिएंस कितना चेंज हुआ, कितना वेरी हुआ। तो यहाँ पे जब हम बिजनेस की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वेरिएंस मतलब हमने सोचा था कि हम टोटल 10 लाख का सेल करेंगे और 8 लाख का किया, तो 2 लाख इज द वेरिएंस। हमने अगर ऐसे सोचा था कि हम 5,000 यूनिट बेचेंगे और 6,000 यूनिट बेची, तो 1,000 इज द वेरिएंस। रुपीस में हो सकता है, यूनिट्स में हो सकता है, प्राइस में हो सकता है। हमने सोचा था 100 रुपया में एक प्रोडक्ट बेचेंगे, बेचा 95 में एवरेज, तो ये प्राइस वेरिएंस हो गया। 10 लाख और 8 लाख सेल्स का अमाउंट का वेरिएंस हो गया। क्वांटिटी मैंने बोला कि 5,000 सोचा था 6,000 बेचा, तो वो क्वांटिटी वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। तो वेरिएंस अलग अलग हो सकता है, क्वांटिटी का, प्राइस का, टोटल का। तो वेरिएंस यहाँ पे हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड, बजटेड एंड एक्चुअल का डिफरेंस ही हमारा वेरिएंस होता है, राइट।
अब ये एक और चीज पता होनी चाहिए कि वो फेवरेबल और अनफेवरेबल, अनफेवरेबल यानी उसको हम एडवर्स भी बोलते हैं, वो कब है। अब अगर मैं सेल्स की बात करूं तो हमने 10 लाख का सेल सोचा था और 8 लाख का हुआ, तो वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? सेल्स कम होना अनफेवरेबल है, इनकम कम हो रही है। हमने 100 में सोचा था बेचेंगे और 95 में बेचा, तो वो भी अनफेवरेबल। 100 में सोचा था और 110 में बेचा तो फेवरेबल। हमने 5,000 यूनिट सोचा था बेचेंगे, 6,000 बेचा तो फेवरेबल सेल्स के लिए। बट एक्सपेंस के लिए उल्टा है। हमने सोचा था 1 लाख खर्चा होगा और 1.25 लाख खर्चा हो गया, 1,25,000 खर्चा हो गया, तो वो अनफेवरेबल। 1 लाख खर्चा सोचा और 90,000 खर्चा हुआ, तो वो फेवरेबल। तो वेरिएंस क्या होता है और फेवरेबल अनफेवरेबल कैसे होता है, ये तो तुम लोगों को क्लियर है। दिस इज क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन का है, वो उल्टा है ये भी आई गेस। ये तो सॉल्यूशन है। Where is the question? ये क्वेश्चन है, ये डिटेल है, ये दिया हुआ है। पेज नंबर है क्या नीचे? नहीं, ये टेक्स्ट बुक का है क्या तुम लोगों का? तो कोई प्रॉपर भेज देता तो अच्छा रहता। तो ठीक है, ये 91 पेज है, हाँ ये तो बाद में आएगा। ये 93 है पेज नंबर, ये भी बाद में आएगा। दिस इज 91, 93, दिस इज 87, तो यही पहला पेपर है शायद, रेवेन्यू वेरिएंस। तो तुम लोगों को सिर्फ रेवेन्यू वेरिएंस है। रेवेन्यू मतलब सेल्स वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस शायद नहीं है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स प्राइस वेरिएंस है यहाँ पे। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है, वॉल्यूम में सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी, और सेल्स क्वांटिटी में मार्केट शेयर और मार्केट साइज वेरिएंस। तो ये 6 वेरिएंस रेवेन्यू वेरिएंस में हमें सीखनी है। तो रेवेन्यू वेरिएंस यानी सेल्स वेरिएंस is the difference between the actual and planned revenue of an organization. ये तो जो मैंने बताया तुम लोगों को, राइट। Sales can be calculated variance either through value method or through the profit method. दो मेथड है यहाँ। यहाँ पे अगर हम एक प्रोडक्ट का वेरिएंस की बात करेंगे तो सिर्फ उस प्रोडक्ट का प्लान सेल्स और एक्चुअल सेल्स लेंगे। अगर हम टोटल सेल्स की बात करते हैं तो वी विल यूज द टर्म टोटल प्लान सेल्स एंड टोटल एक्चुअल सेल्स। When we refer to the market size with respect to one product, तो हम estimated market size और actual market size, और सारे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हम टोटल यूज करेंगे वर्ड, वही यहाँ पे लिखा है, राइट। अब यही 88 होगा हमारा, और ये 89, 90, हाँ ये 89 है, और बाकी 90, 91 होगा हमारा। इसमें तो वो इधर ट्रांसफर प्राइसिंग के भी क्वेश्चन इसमें भी है लाइन से, आई गेस यहाँ से कर लेनी चाहिए। तो इसमें लाइन से दिए हो, ये फाइल में वो है, तो इसमें लाइन से है, ये फाइल अच्छी है, ठीक है, मुझे पता नहीं चला, नो प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन है, समझो। ये एएसएल ऑटम सोप्स लिमिटेड एक कंपनी है और वो 3 सोप बनाती है, स्प्रिंग, सैंडल और सॉफ्ट। प्लान नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया है, 25 लाख सोप बेचना था स्प्रिंग का, ये प्लान किया था। 50 लाख सैंडल का या 2.5 मिलियन, 5 मिलियन, और 30 लाख सॉफ्ट का। टोटल 10 लाख 50, 1 करोड़, 5 लाख यूनिट सेल करना। एक्चुअल में कितना बेचा वो दे दिया है, स्प्रिंग का कितना बेचा, सैंडल का, सॉफ्ट का कितना बेचा। मार्केट साइज, एस्टिमेटेड मार्केट साइज सोचा था इतना होने वाला है, एक्चुअल मार्केट साइज इतना हुआ। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, जो प्राइस में बेचने का सोचा था वो 10, 5 और 8 था, बट एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो बेचा वो 8, 6 और 7 में बेचा। और स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट जो सोचा था वो 5, 1 और 8 में था। 5, 1 और 7 में, 5 और 7 में 8 में। और टोटल 10 लाख 50 लाख, 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 10 लाख 50
₹3 एक यूनिट पे प्रॉफिट सोचा है। अब तुम लोगों को जो भी वेरिएंस बोलेंगे तो सब फॉर्मूला बेस्ड है ये पूरा, तो तुम लोगों को सारे फॉर्मूला तो नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। अगर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बोलते हैं तो उसका ये फॉर्मूला है एज पर द प्रॉफिट मेथड। ये फॉर्मूला है समेशन स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट जो दिया हुआ है यहाँ पे इनटू एक्चुअल सेल्स माइनस प्लान सेल्स। तो हमें तीनों प्रोडक्ट का अलग अलग निकाल के उसका टोटल लेना है, वो हमारा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हो जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस प्लान्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट। तो पहले हम स्प्रिंग का निकालेंगे, स्टैंडर्ड मार्जिन 5 है, एक्चुअल है 30 लाख, प्लान्ड है 25 लाख। तो 30 माइनस 25 दैट इज 5 लाख इंटू 5, तो इसका आएगा 25 लाख। तो ये तो पॉजिटिव है, फेवरेबल है, क्योंकि हमने सोचा था ज्यादा, कम बेचा ज्यादा। सैंडल का ₹1 मार्जिन है, 50 लाख सोचा था, 40 लाख बेचा, तो 40 माइनस 50 इंटू 1, तो ये नेगेटिव 1 लाख आएगा, ये अनफेवरेबल है, 10 लाख सॉरी। वैसे ही सॉफ्ट का 3 इंटू 18 लाख माइनस 30 लाख, तो 12 लाख इंटू 3 माइनस 36 लाख। तो टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये तो एक एक प्रोडक्ट का था, टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ये तीनों प्रोडक्ट का हम ऐड करेंगे, 25 लाख माइनस 10 लाख माइनस 36 लाख, तो माइनस 21 लाख। तो ये अनफेवरेबल है। द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस माइनस 21 लाख signifies the opportunity to earn a margin of 21 lakh foregone by the organization. The sales volume variance ये आ गया। क्लियर है ये? इसमें किसी को डाउट है? Any doubt in this? अभिषेक, दिव्या, तनिष, तुहीन, विनीत। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा था कि वॉल्यूम वेरिएंस का दो पार्ट है, मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो आगे दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये पहले क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड एवरेज मार्जिन पर यूनिट into actual total sales, planned total sales. तो एक्चुअल टोटल सेल्स और प्लान टोटल सेल्स तो यहाँ पे भी है। एक्चुअल टोटल सेल्स 88 लाख, प्लान टोटल सेल्स 1 करोड़ 5 लाख, बट एवरेज मार्जिन नहीं दिया है ना, टोटल मार्जिन एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ये 5 इंटू 25 लाख प्लस 1 इंटू 50 लाख प्लस 3 into 30 lakh and divide by this 1 करोड़ 5 लाख। वो नीचे कहीं शो किया होगा इन्होंने, सेल्स मिक्स वेरिएंस। और ये रहा, देखो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा एवरेज मार्जिन। तो एवरेज मार्जिन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्रोडक्ट का ₹5 था, उसका 25 लाख यूनिट था स्टैंडर्ड, तो 25 लाख इंटू 5। सेकेंड प्रोडक्ट का ₹1 था स्टैंडर्ड मार्जिन, उसका प्लान सेल्स 50 लाख था, तो प्लस 1 इंटू 50 लाख। वैसे ही 3 इंटू 30 लाख टोटल प्रॉफिट आएगा। प्लान टोटल प्रॉफिट 25 लाख सोचा था इंटू 5 प्लस 50 लाख इंटू 1 प्लस 30 लाख इंटू 3, टोटल प्रॉफिट इतना, और इतना हम टोटल बेच रहे हैं, तो एक यूनिट पे कितना होगा वो यहाँ पे निकाला है, जो आ रहा है 2.52। बस अब ये फॉर्मूला यूज किया है, जो हमारा ये क्वांटिटी वेरिएंस है, दिस इज जस्ट फॉर्मूला। स्टैंडर्ड एवरेज मार्जिन पर यूनिट विच इज 2.52। एक्चुअल टोटल सेल्स जो क्वेश्चन से मिला, टोटल वाला कॉलम का लेना है, प्लान टोटल सेल्स ये भी टोटल वाले कॉलम का लेना है। तो सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस विल बी माइनस 42,84,000। अब ये क्वांटिटी वेरिएंस हो गया।
लेकिन हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम वेरिएंस का दो पार्ट है, एक मिक्स और क्वांटिटी। तो मिक्स पहले क्यों देखेंगे, क्वांटिटी इतना आया, अब मिक्स यहाँ पे है। मिक्स का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड एवरेज मार्जिन पर यूनिट इनटू एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स एट स्टैंडर्ड सेल्स में। तो स्टैंडर्ड एवरेज मार्जिन तो 2.52 निकाला। अब ये एक्चुअल सेल्स हमें है हमारे पास, ये निकालना पड़ेगा, एक्चुअल सेल्स एट स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स। एक्चुअल सेल्स एट स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स का ये फॉर्मूला है, प्लान्ड सेल्स इनटू टोटल एक्चुअल सेल्स अपॉन टोटल प्लान्ड सेल्स। तो टोटल एक्चुअल सेल्स अपॉन टोटल प्लान्ड सेल्स, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ। टोटल और प्लान्ड सेल्स, ये तीनों प्रोडक्ट का निकालना पड़ेगा अलग अलग, मिक्स वेरिएंस। स्प्रिंग का अलग और सैंडल का अलग और थर्ड वन का अलग। तो पहले हम स्प्रिंग का निकालेंगे, एक्चुअल सेल्स एट स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स। तो स्प्रिंग का प्लान सेल्स 25 लाख, ये तो कॉमन रहेगा तीनों के लिए बिकॉज ये तो टोटल है, टोटल एक्चुअल सेल्स अपॉन टोटल प्लान सेल्स। तो ये आ गया स्प्रिंग का। वैसे ही सैंडल का आ जाएगा और वैसे ही सॉफ्ट का आ जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन है। अब सेल्स मिक्स वेरिएंस का ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट। स्टैंडर्ड मार्जिन अभी देखो कितना था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट का, जो था 5। इसमें से वो एवरेज जो 2.52 निकाला था वो माइनस करना है। तो यहाँ पे तुम लोगों को मिलेगा, तो ये 5 माइनस 2.52 इंटू 30 लाख एक्चुअल सेल्स माइनस ये जो हमने निकाला 20 लाख 95। एक्चुअल सेल्स कैसे मिलेगा क्वेश्चन, तो ये स्प्रिंग का आएगा, सेम फॉर्मूला से सैंडल का आएगा और सॉफ्ट का आएगा। फिर तीनों का टोटल लेंगे तो ये आ रहा है पॉजिटिव 21,90,480। और ये 21,90,480 और जो हमने क्वांटिटी वेरिएंस निकाला है यहाँ पे -4284, इन दोनों का टोटल करेंगे तो इससे मैच होगा -21 से, -21 लाख से मैच होगा। बिकॉज ऑब्वियस है कि हमने यहाँ पे देखा कि जो भी ये है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो भी इसका टोटल है इन दोनों का टोटल इससे मैच होगा, वैसे इन दोनों का टोटल क्वांटिटी वेरिएंस से मैच होगा। तो ओनली फॉर्मूला बेस्ड है, कैसे क्या निकालना है वो यहाँ पे फॉर्मूला दिया और इसमें पूरा सॉल्व ही है ये तो। अब जो नेक्स्ट है वो है सेल्स प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस सिंपल है कि दोनों का प्राइस का डिफरेंस। तो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू यानी इन शॉर्ट क्या है, कितने में हमने बेचा, टोटल कितना मिलेगा। तो 30 लाख बेचा, 8 रुपए में बेचा, तो 30 लाख इंटू 8 ये एक्चुअल रेवेन्यू हो गया। 40 लाख इंटू 6 एक्चुअल रेवेन्यू, 18 लाख इंटू 7 ये तीनों प्रोडक्ट का एक्चुअल रेवेन्यू हो गया। राइट, जो फॉर्मूला दिया है बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो एक्चुअल सेल्स और ये एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी करना है। इन शॉर्ट करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस इनटू 30 लाख करो तो भी आ जाएगा। प्राइस वेरिएंस है तो प्राइस का डिफरेंस एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड 8 माइनस 10 दैट इज 2, -2 इंटू 30 लाख -60 लाख, 6 माइनस 5 1 इंटू 40 तो +40, 7 माइनस 8 -1 इंटू 18 -18। तो यहाँ पे देखोगे तो वही आ जाएगा तुम्हारा, सैंडल का आ रहा है वही 40 लाख
और इसका आ रहा है वही 18 लाख, और इसका प्राइस वेरिएंस -60 लाख। तो -60 लाख प्लस 40 लाख -18 लाख, तो -38 लाख प्राइस वेरिएंस है। डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस लेना है तुम्हें, डिफरेंस इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय दिस, इससे तुम्हें प्राइस वेरिएंस मिल जाएगा। या 30 लाख इंटू 80 -30 लाख इंटू 10, 40 लाख इंटू 6 -40 लाख इंटू 5, 18 लाख इंटू 7 -18 लाख इंटू 8. This is your price variance. ये प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, मिक्स और क्वांटिटी। अब हमारा बचा मार्केट शेयर और मार्केट साइज, उसका भी फॉर्मूला है। वो ऊपर दिया है फॉर्मूला, मार्केट शेयर वेरिएंस। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एवरेज मार्जिन पर यूनिट into total actual market size into total actual market share percent minus total planned market share percent. तो ये परसेंटेज पहले तो निकालना पड़ेगा। टोटल एक्चुअल मार्केट शेयर परसेंट क्या होएगा, कितना यूनिट्स बेचा और टोटल एक्चुअल मार्केट साइज कितना था, इंटू 100। ये भी क्वेश्चन से मिलेगा। ये हमने इतना बेचा, मार्केट साइज टोटल इतना था 50.29। प्लान, हम प्लान इतना बेचने का था, मार्केट साइज इतना था, तो ये आ जाएगा इतने। यानी हमने मार्केट शेयर सोचा था 58.33% होगा, बट हुआ 50.29। तो मार्केट शेयर परसेंटेज का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल माइनस प्लान, वो तो हमारा ये हो गया। तो परसेंटेज, स्टैंडर्ड एवरेज मार्जिन हमने निकाला था 2.52 into total actual market size, total actual market size which is given in the question 1,75 lakh। तो हमारा मार्केट शेयर वेरिएंस आ जाएगा, मार्केट शेयर वेरिएंस नेगेटिव आएगा, इतना हमें लॉस हुआ। मार्केट शेयर जब हमने सोचा था 58%, बट 50% हुआ, उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। देन मार्केट साइज वेरिएंस, ये भी फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड एवरेज मार्जिन जो हमने निकाला था, टोटल प्लान मार्केट शेयर परसेंट जो अभी ऊपर निकाला, टोटल एक्चुअल मार्केट साइज माइनस एस्टिमेटेड मार्केट साइज, ये टोटल साइज और एस्टिमेटेड। तो ये भी क्वेश्चन में दिया था, तो ये इतना नेगेटिव। अब इन दोनों का हम टोटल करेंगे, -35, 45, 640 और -734, तो इसका टोटल इससे मैच होगा जो हमने निकाला था 42। क्योंकि देखो ये दोनों का टोटल सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस से मैच होगा, विच वाज 42 लाख। तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है ये, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। एक ही सम है वेरिएंस का, तो राइट, बाकी हमारे पास है नहीं। और एक पास्ट पेपर्स 24 में देख लेते हैं, बट सिलेबस माइट बी डिफरेंट इन 24। ट्रांसफर प्राइसिंग का 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। कंपनी सी हैज 2 subsidiaries, subsidiary P and Q. Subsidiary P manufactures that can be sold in its market for $200, right? और subsidiary P incurs a cost of 120। यहाँ पे subsidiary P कितने में बेच सकती है, 200 में मार्केट में वो बेच सकती है, उसका कॉस्ट 120 है। Q उसको फर्दर प्रोसेस करेगा 10 रुपया पर यूनिट पे, और 250 में बेच सकता है।
सेम क्वेश्चन है बट यहाँ प्रोसेसिंग कॉस्ट और दे दिया है। और कंपनी सी कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस बाय स्प्लिटिंग द प्रॉफिट इक्वली बिटवीन द टू सब्सिडरी। Or the subsidiary P manufactures 100 ABC product and sells all of them to subsidiary Q for onward processing and selling. Calculate the transfer price and the profit generated by subsidiary P as well as Q in this case. Or if subsidiary P manufactures 100 ABC product and sells 50 out of 100 by itself and sells remaining 50 to subsidiary Q for onward processing and selling, calculate the transfer price and the profit generated by subsidiary P as well as Q in this case. ये भी सॉल्यूशन देखो किसी ने भेजा हुआ है चैट जीपीटी करके। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, हम चेक कर लेते हैं। तो सिंपल है कि ये तो बराबर है कि 200 रुपया ये है ना, बट पार्ट ए वो अलग है। ट्रांसफर प्राइस यहाँ पे रॉन्ग है, 10 रुपया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है और कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर बाय P 120 है और Q 250 में बेचेगा, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी तो 130 होना चाहिए, यहाँ पे 120 दिया है, राइट। यहाँ पे 120 के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड, राइट। So therefore total cost is 130, that is 120 of P और Q का भी कॉस्ट माइनस होगा ना। तो therefore कंपनी को जो प्रॉफिट होगा 120 होगा, split equally between both the division, so that will be 60 and 60. So cost of P plus P का प्रॉफिट, cost of P is 120 प्लस 60 प्रॉफिट, तो वो 180 में ट्रांसफर करेगा अगर इक्वल प्रॉफिट है तो 180 में क्यों खरीदेगा, 10 रुपया उसका और खर्चा होगा तो 190 हो गया, 250 में बेचेगा तो उसको 60 रुपया मिलेगा। और पी को भी 180 में वो क्यू को बेचेगा और 120 कॉस्ट है तो उसको भी 60 रुपया मिलेगा। तो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन। अब ए पार्ट में वो 100 प्रोडक्ट बना रहे और पूरा बेच रहे, पूरा 100 बना के क्यू को बेच रहे, तो ट्रांसफर प्राइस 180 है, तो 100 इंटू 180 18,000, कॉस्ट है 12,000, तो 18,000 माइनस 12,000 6,000 would be the profit, जो 100 इंटू 60, ये 250 में बेचेगा तो इसको 25,000 आएगा और 180 में ये खरीदेगा तो दैट इज 18,000 प्लस इसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 10 रुपए है तो वो 1,000 जाएगा, तो 25 में से 18 और 1 जाएगा तो दैट वुड बी 6,000 आएगा सर। बट ऐसा भी हो सकता है कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्यों चैट जीपीटी ने इग्नोर किया, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट इक्वली लिखा है ना क्वेश्चन में, स्प्लिटिंग द प्रॉफिट्स इक्वली। तो सिंपल है, टोटल कॉस्ट ही लेना चाहिए, ये एक बार अपनी फैकल्टी से भी कंफर्म कर लेना, तो इसका भी प्रॉफिट उतना ही आएगा 6,000। तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना, इसीलिए इक्वल आना चाहिए। तो ए पार्ट का भी क्लियर है कि 100 यूनिट्स बेचेंगे तो क्या आएगा। अब बी पार्ट में इन्होंने क्या बोला, तो ये रॉन्ग है, इक्वल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए ये 6,000 हम लेंगे विच इज प्रॉपर आंसर और ट्रांसफर प्राइस 180। अब बी पार्ट में बोला है कि वो 100 यूनिट पी जो बनाएगा उसमें 50 यूनिट वो मार्केट में बेचेगा,
वो 200 रुपये में, और 50 यूनिट वो क्यू को देगा, तो अब प्रॉफिट कितना होगा? तो ट्रांसफर प्राइस हम वापस 180 ही पकड़ रहे हैं, तो वो 50 यूनिट तो मार्केट में बेचेगा 200 रुपये में, तो उससे उसको 10,000 मिलेगा, राइट। और उसका कॉस्ट होगा 50,000 इंटू 50 इंटू 120, 6,000। तो जो मार्केट में बेचेगा वो 50 यूनिट, उस पे उसको 4,000 का प्रॉफिट होगा। अब क्यू को 50 यूनिट वो 180 में देगा, तो उसको क्यू से 9,000 मिलेगा, और उसका भी कॉस्ट 6,000 होगा, तो क्यू को जो बेचेगा उस पे उसको प्रॉफिट 3,000 होगा। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ पी विल बी 4,000 प्लस 3,000, दैट इज 7,000, क्योंकि वो मार्केट में बेच रहा है इसलिए उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब क्यू का प्रॉफिट कितना होगा? वो ऑब्वियसली 250 में बेचेगा 50 यूनिट, और खरीदेगा 180, तो दैट वुड बी 9,000, और 10 रुपया उसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट विच इज 500, तो टोटल 9,000, 12,500 माइनस 9,000 और माइनस 9,000 और माइनस 500, so total profit will be $3,000. तो इसका 7,000 होगा और इसका 3,000, तो टोटल will be 10,000 profit of the company if transfer price is 180, right? क्लियर है ये भी? ये क्वेश्चन एंड सेम में आया हुआ है, किसी ने भेजा था एंड सेम में, क्योंकि मिड सेम में वेरिएंस नहीं था लास्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर पेपर वेरिएंस का क्वेश्चन नहीं आया था इन एमसीएस। और ये जैसे अभी हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है, जैसे उधर 3 सोप दिया था, यहाँ पे 3 बिस्किट्स है, टोटल दिया है, प्लान नंबर, एक्चुअल नंबर, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, बट यहाँ पे सारे वेरिएंस नहीं बोले, कोई भी एक ही बोला, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एज पर प्रॉफिट मेथड। तो वॉल्यूम वेरिएंस जो हमने निकाला था वैसे ही निकालना है, जो उसका है एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन, और फिर उसका टोटल वैल्यू। तो स्टैंडर्ड मार्जिन दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू डिफरेंस ऑफ एक्चुअल माइनस प्लान, 3 lakh minus 2 lakh 50, 50,000 into 20, 4 minus 5 minus 1 lakh into 5, 2 minus 3 minus 1 lakh into 10, और फिर इसका टोटल लेंगे तो वो आ जाएगा। इसका तो फेवरेबल है, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव आया तो अनफेवरेबल, बस भी बोल सकते हैं, तो टोटल -2 लाख आएगा। तो सेम है, कंपनी ने ओवरऑल कम यूनिट बेचा, क्योंकि प्लान किया था 10,50,000, बेचा 9 लाख। दो सैंडविच बिस्किट्स का तो ज्यादा बिका, लेकिन जिंजर और डाइजेस्टिव का कम बिका, और उसकी वजह से कंपनी को ओवरऑल लॉस। Even though sandwich biscuit performed well, ginger and digestive sales dropped significantly. Hence, total profit fell short by 2 lakh, indicating poor sales performance. तो इस तरह का वेरिएंस का सम आ सकता है, और इसमें कोई भी वेरिएंस पूछ सकते हैं जो हमने डिस्कस किया। इसमें तो एक ही पूछा है, बट जो हमने इसमें से डिस्कस किया इसका तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, और ये सम का वो सारे वेरिएंस निकाल लेना जो वहां पे पूछा है, राइट। क्लियर है सबको? तो इतना ही था, तो जितना भी फाइल्स भेजा था आई हैव इंक्लूडेड, if any other required, so I will keep one day before MCS exam if any doubt or any new sums are there. All the best. Thank you.